دوسرے لیڈر ہیں جناب کھانڈے صاحب یا بڑے ڈیڈیسی بنے کہ بحیثیت مسلمان بحیثیت ایماندار یہ لوگ آتے ہیں رات ہم یہ انشاءاللہ باقی یہی امید ہے کہ تو یہ انہیں کاتھر مز تو روزیو یکجا گئیسیت اور ہر 5 پیٹ یہ پڑھن تو ساروی ملت جلت پنن پنچایتن مز اخ تعمیری ترقی ہند اخ دور اس شروع کور پنن گاون مز پنن پنچایتن مز پنہ کانسٹیچوئنسی مز تو انشاءاللہ الرحمن بولو تو کت کہ 2008 مز میانس پنچایتس مز سب سینٹر ڈسپنسری بنیامز وقار رسول صوبن کریاس اناگریشن بیس پنچایت گھر اس گڑ حکومت پھٹ ہسپتال سائنلی کس آن ون تم بعد چھت دن کی سہ 8 مز تھی یت مز 18 مز بہرحال تھی بروٹ کن کر کت اس تعمیر و ترقی ہند اخ جال شروع کرو تھی ساروی کیا کام تم روڈ تہ بنے بجلی تہ لج ITI تہ بنو ڈائٹ کالج تہ بنو ڈگری کالج تہ بنو کدل تہ بنے سینکڑن تعداد مز بنے کدل ہائی سکول بنے پرائمری سکول بنے مگر کیا کام روز وارڈ لیولس مز یم اس وہی ڈیولپ کرنے ضرورت پن لکٹ لکٹ میں کر رہے ہیں اس کے لیے میں ان کو مبارک دل ٹائم آج آپ اور ہم سب اور ہمارا سارا لاڑ لشکر میدان میں جس ابھی گھبرانے کی بات نہیں ہے میں عزت صاحب کو کہوں گا آپ تھوڑا عبداللہ صاحبن سان پران ونان دپان میر عبداللہ صاحبس ست یل اک سازش آئی کرنے تم ونک بان آئندہ لکو اس سازش اگر یت مقابلہ کرو نا 40 ورین ہسا گھو تھی بڑ برحال گھو تھی یہ کانسٹیچوئنسی ہسا گھس تہذ نیس اور 40 سال کے بعد ہمیں کوئی نمائندہ ایسا ملا کہ جو ہماری بات کو اسمبلی سے لے کر روڈ تک جس نے لایا وہ وقار رسول صاحب کی ملک حالات مت نظر تھے کیا ونکن سوشل میڈیا زمانہ ملک حالات تم ساری تھی بروٹ کن ونکن آیا ونکن واحد اخ لیڈر ان حالاتن ست مقابلہ کر سہ گو وقار رسول صاحب مے یاد یل BJP والے تو RSS والے انجینئر رشید اسمبلی مز روٹ 70 MLA ہاؤسس مز موجود اس گھر تمس لائق 70 MLA مز کرنے کس ہمت کہ تم کرن تمن RSS والن تو تمن BJP والن س ہاؤسس مز مقابلہ تاکہ انجینئر رشیدس ہیکن تتھ بچائت سہ واحد وقار رسول صاحب اس وقت ماہ مبارک مے پور یاد یم کور تمن س برابر لڑائی تو انجینئر رشید بچون تمن RSS والن نش پتہ گو بیاکھ اک مسئلہ کشتواڑس مز آئی لوگ اس گئے کیا ملک دشمن لوگوں کشتواڑس مز فساد تو کچھ انڈر ویٹ لگت نچن ٹانو مچو کشتواڑ چن سڑکن مز وقار رسول صاحب یم اسمبلی مز ون دپن اگر RSS والن تو BJP والن دتن چلین اگر ہسا تھی ماجون دور چھو چومت تھی ہائی بان عالِ من اس ہاو تھی کت پڑن کھدیا تھی چھو کیا لوگ نوڑ تراون پیٹ بیاکھ نفر چھو آسان سوچ سہ چھو فوٹو تلان تھی چھو نہ پتہ یم دلیل ہنز کی شامس کرن تہندین رشتہ دارن آون یم ہسا کور اس سۭتۍ خدا رسول پیارس ہوٹلس نبر کن یہ بڑ امپارٹنٹ کت یہ بوزو یا چھو تھی اتفاقن فون کران شامس کیا یمن ذمہ داری دن آمز کہ ٹوٹل وقار رسول ہارن نشیم NC کس کس فون کران نشیم PDP کس فون کران نچ بی کس جماعت سندس نفرس فون کران واحد یمن ذمہ داری آمز دن کہ وقار رسول یہ سا ہر وقت کران ملکچ کت یہ ہر طبقچ کت کران یہ ہر کومنٹی ہز کت کران اس لیے یہ کن پان بان عالِ مز کمزور کر پتہ تھی فون کران شامس پتہ ریکارڈنگ کران
بیٚیہِ چھُ تُہنٛدِس لڑکس بازر ونان ہے یہِ اوس چون بادشاہ وۄنۍ اگر مے کرِ کانٛہہ فون بہٕ چھس دپان ہے اتفاقن ہے کینٛہہ نہ حظ چھُ اگر سُہ خۄداے سُنٛد تہِ چھُ آسان آج تک تمو دۄیو نفرو بہٕ واتنووُس اگر بہٕ وٕنکٮ۪ن تقریر مگر انہوں نے مجھے لایا ادھر اس پارٹی میں پتہ گوٚو پوسٹ ملیو تمن کیا تہندِ پسمان چھ میں کیا حالات ہے اتفاقن نہیں کیا تھا ووٹ ڈی ڈی سی اس گشن لیٹر بناؤ لے بازا جو دبس کام کرا تھا تنے تیل کرو یلتا اقداروں سے تب ہم نے لوگوں کو نظر یمن سۭتۍ یِم نفر جُڑِتھ چھِ ٹوٹل چھُ یمن ٹھیکہٕ آمُت دِنہٕ کہِ تُہۍ چھِو یِم پھٕڑاوٕنۍ وقت بے کرو یلگار اس شہرن تو بے گامن اندر ذاتس منگو دی تار اس شہرن تو بے گامن اندر ژے کار چھت کرمت سٹھا ژے کار چھت کرمت سٹھا ژے بروٹ کن چھی بے کرن ژے کار چھت کرمت سٹھا بے بروٹ کن چھی بے کرن پت گژھِ تمن گٹکار یت گامن تو بے شہرن اندر ژے کار چھت کرمت سٹھا بے بروٹ کن چھی ژے کرن ژے کار چھت کرمت سٹھا بے بروٹ کن چھی ژے کرن پت گژھِ تمن گٹکار یت گامن تو بے شہرن اندر کیچھی وچھان یت خواب آز کیچھی وچھان یت خواب آز تعبیر چھی پانے ونان کیچھی وچھان یت خواب آز تعبیر چھی پانے ونان لُکھ چھی تمن بیزار آز شہرن تو بے گامن اندر کیچھی وچھان یت خواب آز تعبیر چھی پانے ونان لُکھ چھی تمن بیزار آز گامن تو بے شہرن اندر لُکھ چھی کران یت یاد ژے لُکھ چھی کران بے یاد ژے چھُکھ لول چونُے منٛز دلس لُکھ چھی کران بے یاد ژے چھُکھ لول چونُے منٛز دلس تم چھی کران اعتبار آز شہرن تو کیچھی فدا وزلس رنگس کیچھی فدا وزلس رنگس تت پھال چھُ گومُت ہنگس کیچھی فدا وزلس رنگس تت پھال چھُ گومُت ہنگس رووٕے تمن اعتبار آز شہرن تو بے گامن اندر پرچم کنُے کیژو سبز پرچم کنُے کیژو سبز پرچم کنُے کیژو سبز پرچم کنُے کیژو کلش کی ٹوپ آئی ژٕ ون پنٕنۍ تِم کار آز گامن تو بے شہرن اندر کیژو ہجوا کا میں مقیم ہوں میرے ہمسائے گاؤں کے ہیں اور وہاں پہ پل ضروری تھا اس واسطے میں اس وقت کیا تھا کہ ہمارا ہجوا میں ایک پل لوڑی ہے اور اس سال لیڈر کیا ترقی کرے گا جڑا تو دوڑ گئے جی ات کارگا پوچھے کارگا کی نا آپ اتنا لیڈر بڑھاؤ تو فلانی جگہ تو مینڈیٹ لے گیا اور یہ آپ پہ لنگائی ناچ کے تھے جا کر دلی میں جا کر چا پی گیا ہمیں کولڈ ڈرنک کر گیا ہمیں پتہ نہیں کڑی ڈرنک کر گیا ہمیں اس واسطے ان کو نزدیک جاڑو ہم نے شعبہ نہیں دیتو ہم نے شعبہ نہیں دیتو ایسا نالائق انسان اگر نزدیک جا گئے میں ہوں اس تو پہلا 3 سال بعد میں وقار رسول وانی صاحب نے گل کی میرا اپنا بھی اختلاف ہے مگر نظریاتی اختلاف ہے یا کسی بھی طرح کا اختلاف ہے مگر اس طرح کی یہ حرکت جڑی ہے ہماری یہ نہیں ہونے لوٹتی اور پچھلا ڈی ڈی سی جڑا وہ الیکشن تھا اس میں ہم نے بھی تھوڑا حصہ لیو ہم نے ان کی دیکھی کتنی سوچ ہے کتنی گھٹیا سوچ ہے کہ کس طرح کا حربہ اختیار کیا اس واسطے ہوں عوام نہ اپنا دوستانہ یہ تمام لیڈر ہیں یہ میرے تو بڑا لیڈر ہے ہوں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ہوں ان کو کہ تم ایک چیز کرو کہ تم اصل انسان پر نظر رکھو اور انسان کو دیکھو اس کو نظریوں کیا ہے انسان کی سوچ کتنی ہے اس انسان نہ کچھ لوگ کی جو اس وقت ہمنا جی ترقی لوڑی ہے ہمنا اور کسی چیز نالو کے لوڑی ہے ہمنا مذہب نالو کے لوڑی ہے ہمنا دین نالو کے لوڑی ہے ہم پہلا مسلمان ہیں پھر بعد میں ہم کسی پارٹی نال منسلک ہیں ہندوستان میں تمام طرح کا مذاہب ہے تمام طرح کا لوگ ہیں اور سب لوگوں کو ایک کوئی عزت ہے اور سب تمام مذہبوں کو ایک کوئی احترام ہے اس کے نال یہ ہندوستان ایک وہی شیخ العالم نے کہا تھا کہ سوری سماؤ ایک سی رج لمحاؤ دل کیا جرائے ہے کہن گاؤ تو
आजकल जो दौरा चल रहा है, मैं जिनका नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, मुझे नहीं लगता है बेहतर होगा कि स्टेज में मैं उनकी बातें करूं, बल्कि आपसे एक मशवरा करूं। वो ये कि हम ये समझते हैं कि विकार रसूल मानी की एक पहचान बनी है, उस पहचान को बरकरार रखते हुए हम अपना लीडर इसको तस्लीम करते हैं। और इनके अंदर भी जो खामियां हुई है, जो गिले शिकवे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने दरवाजे से बाहर निकलकर उन लोगों के साथ मिलिए और वो गिला शिकवा खत्म कीजिए, क्योंकि इस वक्त जरूरत उसी अमर की है। आपने देखा होगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि विकार साहब ने चांद तारे तोड़ के लाए और आपको दिए, लेकिन एक शुरुआत हुई, तामीर तरक्की का एक दौरा शुरू हुआ और उस दौरा को हमने उसी तरह से महफूज रखना है, उसी तरह से बरकरार रखना है जिस तरह से वो दौरा शुरू हुआ था। मैं ये कहूंगा कि जो एक तवक्का, एक तमन्ना लोगों के अंदर पैदा हुई थी, एक गांव के अंदर ट्रांसफार्मर आया तो दूसरे ने ये जसारत करने की कही कि मेरे गांव में भी लगना चाहिए, यहां तक कि जिस गांव में एक ट्रांसफार्मर था, आज अगर गिनेंगे तो 30 के करीब ट्रांसफार्मर आपको मिलेंगे। स्कूलों की बौछार हुई। किसी तरह से मैं ये कहूंगा कि एक तवक्का बढ़ गई, एक उम्मीद बढ़ गई, बल्कि मैं ये कहूंगा कि बानिहाल की तारीख के अंदर सबसे सुनहरी और बेहतरीन दौर अगर था, वो विकार साहब के 2 साल मिनिस्टर। आप अगर अपनी अहलियाओं से पूछोगे, आप अपनी माओं से, बहनों से पूछोगे कि उस वक्त उन्होंने जो लकड़ी लाना भूल गए, उतनी बिजली फराहम रखी जिसका आज आप देखते हो कि क्या क्या निजाम हमारे साथ किया। माही सियाम के अंदर क्या आपको बिजली मैसर हुई? उन 2 सालों के अंदर आपको सिर्फ 1 घंटा, कहीं रात को वो भी हमें पता नहीं चलता था जो बिजली गई। लिहाजा एक पहचान बनी हुई है, एक सतून आपके सामने खड़ा है, सतून ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि एक टावर आपके सामने खड़ा है जिसके सभी नेटवर्क जो है मौजूद है, और दिमाग वही कुछ कहते थे कि अब ये गया है सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून, लेकिन हमारे पास जो शेर है उसका दिमाग अभी सही है, उसका दिल सही है, उसकी ताकत सही है, इसलिए हम उसको अपना कायद पता था कि हमारे वर्कर कहीं उधर इधर उथल पथल में तो नहीं चले गए। आज तो खुशी हो गई कि सभी जो कांग्रेस पार्टी की टीम है वो यहाँ पे मौजूद है, और मैं आपको दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद कहना चाहूंगा। आपको ये कहूंगा कि आपको फोन आएंगे, कुछ ठेकेदार मिल गए और कुछ ठेकेदार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मैं विकार साहब से गुजारिश करूंगा कि मेरी बात सुने या तो मैं अपनी तकलीफ बंद करूं। कुछ ठेकेदारों के फोन आपको आएंगे, और भाई साहब आपको कुछ नहीं करने आया, आज तक आपको क्या मिला? आओ आपको हम काम देते हैं, आओ आपको हम पैसा देते हैं। लेकिन मुझे हमीदुल्लाह खान की एक बात याद आती है, 2 बातें मैं कहूंगा उसके बाद इख्तिताम करूंगा। हमारे एक अब्दुल करीम चौधरी साहब हुआ करते थे, अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत करे। उन्होंने डाक बंगले में हमीदुल्लाह खान से कहा हम आपको वोट दे देंगे, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, खबरदार है मत कोई आदमी हमारे नाम पे पैसा लेगा, मत कोई हमारे नाम से पैसा लेगा। उसने कहा ये क्यों कहा आपने? कहा हमने गलती से अख्तर निजामी साहब से 50 रुपए लिए और उसको वोट दिया। फिर जब मैं सेक्रेटरीट में उसके पास गया, कोई काम पड़ गया, तो उसने कहा आपने वोट अपने पैसों को दिया था, मेरे पास आपका कोई काम नहीं है। लिहाजा वही दौर अगर फिर वही आने वाला है। तैयारी कर रहे हैं कि हम कितना पैसा जमा करेंगे, कितने ठेकेदार कितने पैसे लाएंगे, लेकिन अगर आप पैसे की बहकावे में कभी आ गए और पैसे के बहकावे में अपनी इज्जत को अगर आपने तार तार करने की कोशिश की, याद रखना आने वाला वक्त वही करेगा जो यूपी के अंदर हमारे लाउड स्पीकरों के साथ हो रहा है। बहकावे में लाने की कई तरह की लालच दी जाती है, कई तरह के सबजबाग दिखाए जाते हैं, मुझे भी फोन आते हैं और मुझसे भी बातें करने की कोशिश की जाती है। मैं गरीब हूँ, गरीब भी सही, लेकिन इज्जतदार हूँ। जहाँ पे जाऊंगा अपने जज्बे से जाऊंगा, दिनों ईमान से जाऊंगा। कभी मैंने बेईमानी करना पसंद नहीं की है और इंशाल्लाह रहमान में करूंगा। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन टूटे हुए तारों से क्या बात बने। हमसे जितना काम हो सकता है अपने लोगों को करते हैं, और जहां पे जरूरत पड़ती है, इस वक्त भी मैंने अपने कायद को सेक्रेटरीट के अंदर साथ लिया, किसी की ट्रांसफर के लिए, किसी की मुलाजमत के लिए, किसी का SRO 43 था, लेकिन मैंने देखा कि इनकी इज्जत ऐवान पाला में भी उसी तरह से मौजूद है जो
मिनिस्ट्री के दौरान थी। खांडे साहब भी आपकी वसातत से आपके साथ साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं। मनाज साहब या खड़ी की जो हमारी टीम है, इसी तरह से हमने देखा जब हम गुलाम नबी आजाद साहब से वफद की शक्ल में जम्मू में मिले तो वहां पे जो गोल वालों ने आपके तई मोहब्बत का इजहार किया, मैं उनके लिए उनका दिली शुक्रिया अदा करता हूं। और उनके पास जब भी जाना होगा मैं विकार साहब से गुजारिश करूंगा कि नाचीज को भी अपने साथ लेना। कुछ हमारे दोस्त अकरबा व अहबाब वहां रहते हैं, उनसे भी हमारी बात होगी। लेकिन इस वक्त जो मुझे नजर आता है कि हमारी टीम अल्लाह के फजल करम से यकजा है और यही यकजा यही इत्तेफाक अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दे। मैं यही कहूंगा कि हाथ में तेरे रहे तौसीन दौलत की आना, ये दुआ शामो सहर काजी हाजात आए, आप उसको टिकने नहीं दोगे, ये मुझे पूरा यकीन है। जरूर है कि मुश्किलात थोड़े से आ जाएंगे, क्योंकि ये जो डिलिमिटेशन हुआ इसमें कुछ इलाके जो है हमारे साथ जोड़े गए जो आज तक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ नहीं थे। वो है संगलदान है या गूल का इलाका है। मगर जो वकार साहब ने अपने मिनिस्ट्री के दौर में, अपने मेंबर असेंबली के दौर में जो एक छाप तामीर और तरक्की की छोड़ी हुई है, उसकी गूंज अगर आपको आज सुननी है, जाओ गूल में सुनो। गूल के लोग इस इंतजार में हैं कि वकार साहब और उसके साथी कब हमारे पास आएंगे, हम उनका यहां पर वो लहना इस्तेकबाल करेंगे। इस्तेकबाल ही नहीं, हम अपनी जो संदूकड़ियां हैं इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर हम दिखाएंगे, यहां से उनको हम भर के भेजेंगे। आपको किसी चीज से मायूस नहीं होना है। यहां पर अफवाहों का बाजार गर्म करने के लिए कुछ लोग बाजारों में फिर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। उनकी न कहीं दार है न दीवार है, नश्तबन का वालिद नशु का वारिस, वो कहीं टिक नहीं पाएंगे। इस तरह से मैंने आपको पहले ही कहा, मैं आपको यह कह रहा हूं कि अगर आप इसमें, मेरे मुनीर साहब यहां से चले गए, ये एक शार में यहां पे जरूर कहना चाहूंगा, एक हो जाओगे तो बन जाओगे खुर्शीदे मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से कोई काम नहीं बनेगा। अगर हम अलग अलग हो जाएंगे, हमें कोई कमजोर से कमजोर आदमी भी सर पे सवार हो सकता है। अगर हम इकट्ठे हैं, अगर हमको एक दूसरे की बात को हजम करना पड़ेगा, जरूर है कि किसी के ज्यादा काम हमने किए होंगे, किसी का कोई काम नहीं हुआ अभी तक, मगर फिर भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि वो हमारे साथ डटा हुआ है। वो अपनी जगह जहां पर उसकी ड्यूटी लगी है, चाहे वो पंच है, चाहे सरपंच है, चाहे हमारा अदना सा वर्कर है, चाहे वो बूथ लेवल का छोटा वर्कर है, वो अपनी जगह हमारे लिए काम कर रहा है। और हमें भी नजर आ रहा है कि भाई ये लोग जो है ये अभी भी इंतजार में है। हमें अल्लाह ताला ने वो वसत दी है, सोच दी है, इंशाल्लाह हमारी नजरें उन पर है। किसी को मायूस होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपकी जो मायूसी है, वक्त आने पर ये सब चीज जो रियासत जम्मू कश्मीर में यहां पे जो साथ से ना सोचे आप कि अभी तक लोग जो है ना इलेक्शन आने तक बड़ा खा पी के वो पेट इतना निकालेंगे, मगर मैं आपको एक जरूर यकीन दिलाता हूं, लोग इस इंतजार में हैं कि इलेक्शन का बिगल कब बजेगा और इनको यहां से वो करारा जवाब मिलेगा। सदी हुई जनसंघी और आरएसएस वाले याद करेंगे, मगर वो आप लोगों ने हिम्मत करनी है, आपने ये हिम्मत दिखानी है। हमारे साथ जो कुछ हुआ, 370 हमसे छीना गया,
35 से हमसे लिया गया, क्या क्या नहीं हुआ। जो आपके पास खालसा सरकार जमीन थी, आजाद साहब ने रोशनी एक्ट इसलिए बनाया था कि वो आपकी मुस्तकिल प्रॉपर्टी बने, वो आपकी मिल्कियत बनाने की बात कर रहा था। आज आपको वो सरकारी जमीन आपसे छीनी जा रही है। उसी आजाद साहब के हम सिपाही हैं, उसी आजाद साहब के हम सिपाही हैं, जिसका ये विजन है कि गरीब की जो उसकी दौलत है उसकी हम हिफाजत करें, उसको कोई डाका ना डाले। आज हमारे लोगों से सरकारी जमीनें छीनी जा रही हैं। अगर किसी ने सारी उम्र की दौलत इकट्ठा करके मकान बनाया, उस मकान को गिराया जा रहा है। ये वोट आज आपको किसी को नहीं देना है, ये वोट आज मुझे नहीं देना है, ये वोट आज वकार साहब को भी नहीं देना है, ये वोट आपने अपने आप को करना होगा। इसको पन्ने हवास्त खतर करूं, यहाँ की माँ और बहन की इज्जत की हिफाजत के लिए, यहाँ के हमारे जमीन और जायदाद की हिफाजत के लिए हम लोगों को वोट करना है। इस बात को संजीदगी से समझे। पैसे आते रहते हैं, पैसे पूरे कैसे आस्ता, ये पैसा क्या चीज है? इज्जत है, आपका गरबार है। तो ये फौरन जो डिलिमिटेशन की फाइनल रिपोर्ट आ गई है, उसके बाद शायद ये इलेक्शन का ऐलान करेंगे। इसके लिए हमको तैयार रहना होगा। आज यहां पर कोई इलेक्शन का कोई जलसा नहीं था। ये हमेशा से ईद के बाद पार्टी का एक दस्तूर है कि माह रमजान के बाद जब ईद आती है तो ईद के बाद हम इकट्ठे बैठते हैं। यहाँ पर हमने कुछ लोगों ने गिले भी किए, कुछ लोगों ने खुशी का इजहार भी किया। तो सब लोग यहाँ पर हमने मुलाकात की। मैं सोई बानहाल कौम, चाहे यथ मज कशिर, चाहे यथ मज पहाड़ी, चाहे यथ मज गुजर बरादरी, चाहे यथ मज हिंद बरादरी, यश बरादरी, अल्लाह ताला दिन तौफीक हर अकिस पे अकई नजर थानस, हर एक सज काम करनस, हर एक इलाके पूरा ख्याल थानस पड़स बात कुन। तो खुदा गवाह है, मुझे हमने कभी ये चीज नहीं देखी, कभी ये चीज हमारी नजर में थी ही नहीं कि बाबा ये हम इलाकों को रिशी इलाकों की पुगलू की उकड़ालू। आज गो सेनापति पड़िस्तान अलग सुनू रामंद से, मगर आज भी जाओ उन लोगों के पास, उनको पूछो विकार रसूल की क्या कदर है। मेरे बुजुर्गों, आज जो हमारा दिन है यहाँ पे, वो एक मिलन है। रोजों के बाद एक छोटा सा मिलन होता है। याथ मिलनस मज कराओ थोड़ा बहुत बेते ताकत लगाओ थाओ ये बतुक इंतजाम साई तंजीम हुंद अकु चीज जहनस मज थोमुत, अगर खुदा तो खुदा रसूल रट थोमुत दीनी हिसाब से, सियासी हिसाब से वनकुक दौर वो पतिम दौर या ब्रूठिम दौर, वनकुक दौर 15 वरियों पे दौर गुजरियो, 20 वरियों पे दौर गुजरियो, तथ मज थो सियासी हिसाब ये जम्मू कश्मीर सियासत नजर थी, बानाल सियासत नजर थी। अस रोट एक सुंदर दामान सियासी हिसाब, सह गो गुलाम नबी आजाद साहब। और इंशाल्लाह तम इंसानन कर अस मेहरबानी तम इंसानन दुत जिले तम इंसान दित कॉलेज तम दित रोड तम दित हस्पताल तम दित डिस्पेंसरी तम थो ख्याल और तमिस मोहब्बत लुकन और अस तम सुन मोहब्बत। लिहाजा वारा यन पे गवर्नर रूल गो 4 वरी गुजरे। 18 जून इन वोल रेथ रूत 18 जून 2018 गिरे सरकार और 18 जून 2022 कलकत इन वोल 4 वरी गसन कंप्लीट गवर्नर राजस। शुक्र रब सुन इक्तदार वराई युथ मोहब्बत तुम जोक दर जोक यूत सोचन तम नश डबल तुन साइन। पार्टी की मजबूती की अलामत है। गुलाम नबी आजाद साहब के पास में जब गया
पहले जब मैंने सियासत शुरू की, मैंने कहा उसको आजाद साहब तम दोपन अगर मजबूती से हमदर्द नफर हाथ आसी इलाकस मज आपको कोई इलेक्शन हरा नहीं सकता। अस नश वनकन पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी मज भूल वराई 4,000 वर्करन हुन फोन नंबर व्हाट्सएप हर चीज मौजूद 4,000 वर्कर ऐड करो का पता अगर पैसे नहीं रुक सर गए तुम कह सच रोज तलो नेट खुद अच्छा सारे मोहब्बत इंशाल्लाह हमको उसका पूरा साथ देना है। वक्त सख्ती ये काम मुसीबत है वो हमारे सामने होता है। फ्लड में भी वो लगभग रहमान जोड़ आजाद साहब तोड़ अगर नौजवानों को आगे बढ़ाना है, बेरोजगारी को दूर करना है, तरक्की और तामीर करनी है, खड़ी में से तरक्की करें, खड़ी में कॉलेज बनाना है, खड़ी में तहसील के सारे दफ्तर लाने हैं, बहरहाल में डिस्ट्रिक्ट बनाना है, बहरहाल में यूनिवर्सिटी बनानी है, रोड जो रहे हैं उनको बनाना है, बिजली जो रही है उसको बनाना है। वो खाली कांग्रेस पार्टी ने काम किया है और कांग्रेस पार्टी ही काम कर सकती है।